सभी को जय मसीह की। आइए इस आराधना के गीत के साथ अपने हृदयों को तैयार करें, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना के 4 अध्याय में, क्या कहा आप लिख भेजेंगे? क्योंकि यीशु मसीह कहता है जो मुझ में बना रहेगा वो जीवन जल का सोता बनेगा और वो सदैव बहता रहेगा। अगर इससे जुड़ा कोई थॉट हो तो हमें प्लीज लिख दीजिए, बिकॉज लेट्स सिंग दिस सॉन्ग। जीवन जल का सोता बहता जाता है। जीवन जल का सोता बहता जाता है। जीवन जल का सोता बहता जाता है। मेरे जल भूमि पर बरसाता है। मेरे जल भूमि पर बरसाता है। हालेलुया 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 Still we never understand the grace to be loved
soul would like to thank you because of the every drop of blood you poured for me, Lord. Like the psalmist says, bless the Lord, O my soul, worship His holy name. Lord, receive my praise and receive my worship, Lord. I would like to give my soul, I would like to give my body as a living sacrifice in front of you, Lord. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, Lord, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, Lord, I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may promise and whatever lies before, that day we sing, that evening bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, Lord, I worship Your holy name. You're rich in love and You're slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness, like a king of singing. 10,000 reasons for my heart to find You. Oh, it's my Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, Lord, I worship Your holy name. I worship Your holy name. Lord, I worship Your holy name. I worship Your holy name. Shalom, Yahuwah, Emunah, Masiha. Shalom, Yahuwah, Emunah, Masiha. मुझे जन्म देगा जिसे मैं तो हो जाना। मुझे जन्म देगा जिसे मैं तो
मैं तेरे लिए जीऊंगा। यादूंगा मैं तू मेरा मसीहा, मैं तू मेरा मसीहा। धन्यवाद इस खूबसूरत क्षण को आगे के हर एक पल हर एक क्षण का अपना जिंदगी को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। हमारे प्रभु, हमारे मुक्तिदाता उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम की स्तुति और महिमा हो। And let Lord the Jesus Christ, who is our Redeemer and gave us salvation, let him be glorified. प्रभु ने एक और हमें अवसर दिया कि हम उसके अनुग्रह के सिंहासन के पास आए। God has given one more opportunity so that we can come to this throne of grace, और इस प्रभु मेज में हम भाग ले सकें, so that we can partake in this communion, जिसकी स्थापना स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने अपना प्राण देकर के की। and the initiator of this communion was Jesus Christ himself, who gave his life and showed us. उससे पहले हम एक वचन को देखेंगे जो निर्गमन की पुस्तक उसका 20वां अध्याय और 25वां पद है। And before that, we would like to read it from Exodus chapter 20, verse 25. जहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, और यदि तुम मेरे लिए पत्थरों की वेदी बनाओ तो तराशे हुए पत्थरों से न बनाना, क्योंकि जहाँ तुमने उस पर अपना हथियार लगाया वहां तू उसे अशुद्ध कर देगा। And verse 25 says, and if you make me an altar of stone, you shall not build it up of eve stone, for if you use your tool on it, you have profaned it. प्रभु परमेश्वर ने मूसा को ये आज्ञा दी थी कि जब तुम वेदी बनाओ और पत्थरों की वेदी बनाओ तो वो तराशे हुए पत्थरों से न बनाना, अर्थात उन पत्थरों के ऊपर तुम्हारा कोई भी कार्य न किया हुआ हो। And when God is telling Moses to build an altar, he is telling them, don't use the heave stones, but like the stones which are not being used, not being any tool has been used on it. क्योंकि जहां तुमने उस पर अपना हथियार लगाया वहां तू उसे अशुद्ध कर देगा। And for if you use your tool on it, you have profaned it. परमेश्वर की आराधना जो है परमेश्वर के बताए के अनुसार ही हमें करना है। And when we worship God, the way God wants us to worship him, that is the way we have to do it. जैसे हम यशायाह की पुस्तक में पढ़ते हैं कि तुम्हारे सारे धर्म के काम मैले चित्रों के समान हैं। And in the book of Isaiah, it says like all the good works are like filthy rags in front of God. तो परमेश्वर नहीं चाहता कि उसकी जो वर्शिप है या ये जो वेदी बनाई गई थी जहाँ पे बलिदान चढ़ाए जाने थे, इसमें कोई मनुष्य का कार्य हो। And when God is doing that work, he don't want anything to be done on the human efforts. जैसे कि इफिसियों का खत उसका 2 अध्याय वचन 8 और 9 में लिखा है, book of Ephesians chapter 2 verse 8 and 9 says, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। And this verse talks about saying that for by grace you have been saved through faith, and that not of yourself, it is a gift of God. इस तरह से हमने देखा कि पत्थरों की वेदी में कोई भी काम नहीं किया हुआ होना चाहिए, और इसी तरह यहाँ पे हम देखते हैं कि और यह तुम्हारी ओर से नहीं, यहाँ पर हमारा कुछ भी कार्य नहीं है। As we read in Exodus chapter 20 verse 25, that no tool should be used on that stone or to build an altar. That's the same way here God is telling that for salvation, it is a gift of God. It is a gift of God that nobody should boast in themselves. और ये तुम्हारी ओर से नहीं, हमारा उसमें कुछ भी नहीं है, हमारे जो उद्धार का कार्य है, and that it is not of yourself, it is of God. इस तरह से यीशु मसीह ने जब सलीब के ऊपर अपना प्राण दिया तो कहा पूरा हुआ।
The way Jesus gave his life on that cross and he proclaimed that it is finished. तो उद्धार का जो कार्य था वो स्वयं परमेश्वर ने हमारे लिए पूरा किया, And the work of salvation that God has done for us, इसमें मनुष्य का कोई भी कार्य नहीं है। there is no human elements or human efforts as involved in this. मनुष्यों के लिए परमेश्वर का ये प्रबंध है जिसका आधार यीशु मसीह की मृत्यु है। And for human beings, there is an way which is the initiator of that way is Jesus himself. तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही हमें पूर्ण उद्धार, पूर्ण छुटकारा मिलता है। ये एक मुकम्मल बलिदान है जो उसने अपने आप का हमारे लिए चढ़ा दिया। And through Jesus Christ, we get saved. This is the way he has proclaimed he has obtained that victory. और ये जो मेज है हमें उसी का स्मरण दिलाती है जिसमें हम अभी भाग लेंगे। And this communion represents that. और अब मैं पढ़ना चाहूंगा पहला कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय 23 से लेकर 28 पद तक। And I would like to read it from 1 Corinthians chapter 11, 23 onwards. क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात में पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। Verse 23, for I received from the Lord that which I also delivered to you, that the Lord Jesus on the same night in which he was betrayed, took bread. इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नहीं वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। And this is my body which is broken for you, do this in remembrance of me. And the same way he also took the cup of new covenant in my blood, this do as often as you drink in remembrance of me. क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो, as often as you eat of this bread and drink of this cup, तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। you proclaim the Lord's death till he comes. इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। Therefore, whoever eats this bread or drinks this cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty of the body and the blood of the Lord. इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। But let a man examine himself, and so let him eat of the bread and drink of the cup. आइए हम इस पवित्र रोटी में भाग लेते हैं। So let's all partake in this bread. और इस पवित्र प्याले में भी हम भाग लेंगे जो हमें प्रभु का पवित्र लहू की याद दिलाता है जो हमारे पापों के लिए बहाया गया है। And we will also partake in this wine which represent the blood of Jesus Christ. आइए हम प्रेयर करेंगे। So let's pray. पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। Father God, we thank you. पिता, हम आपके उस प्रेम के लिए धन्यवाद करते हैं जो बिना शर्त आपने हमसे किया। We thank you for that love that you did. You loved us without any conditions. प्रभु, हम आपके उस बलिदान के लिए धन्यवाद देते हैं जो आपने हमारे पापों की क्षमा के लिए सलीब पे किया। And we want to thank you for the sacrifice which you did on that cross to forgive us. और आपके पवित्र लहू बहाए जाने से आपने हमें अपने घर का किया। And by shedding your precious blood, you made us members of your family. पिता, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी बड़ाई और आपकी स्तुति करते हैं। And we thank you and we glorify you. और पिता, अपने आप को आपके चरणों में सौंप देते हैं। Father, we commit ourselves into your hand. हमारी सहायता करें। You help us. कि हम आप में इसी तरह जुड़े रहें, बने रहें और आपके प्रेम और आपके निकट संगति में बढ़ते जाएं। So that we can be attached to you and abide in you, so that we can grow in our relationship with you. धन्यवाद की विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम में करते हैं। We commit this prayer into your hand
And in Jesus' name we pray. आमीन। Amen. तेरे लहू से मुझे धो ले प्रभु, पूरी तरह से अभी तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु, और तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। दलदल की कील से मुझे उठाया, चट्टान पर खड़ा कर दिया तेरे लिए। दलदल की कील से मुझे उठाया, चट्टान पर खड़ा कर दिया तेरे लिए। क्षमा किया है तमाम पापों को, स्मरण करता हूँ दिन मिटे हो। क्षमा किया है तमाम पापों को, स्मरण करता हूँ दिन मिटे हो। तेरे नाम से मुझे धो ले प्रभु, पूरी तरह से अभी तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। कलवरी पर बलिदान हुआ, दान का है तू मेरे लिए। कलवरी पर बलिदान हुआ, दान का है तू मेरे लिए। विश्वास में स्थिर रहूंगा और तुझसे ज्यादा प्रेम करूंगा। विश्वास में स्थिर रहूंगा और तुझसे ज्यादा प्रेम करूंगा। तेरे नाम से मुझे धो ले प्रभु, पूरी तरह से अभी तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। टूटा हुआ बलिदान का है तू, कठोर कर दिया मैंने पिछले दिनों में। टूटा हुआ बलिदान है तू, कठोर कर दिया मैंने पिछले दिनों में। नया बनाया दया करके स्वर्गीय स्थान में बिठा दिया। नया बनाया दया करके स्वर्गीय स्थान में बिठा दिया। तेरे लहू से मुझे धो ले प्रभु, पूरी तरह से अभी तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में
काम कर तू प्रभु, अब तेरे ही समान होने के लिए तेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। Good morning, church. गुड मॉर्निंग कलीसिया, Welcome to this Sunday morning service. और आप लोगों का स्वागत है आज की रविवार की सभा में। I believe that you all are doing good. और मैं आशा रखता हूँ कि आप लोग सब अच्छे हैं। So let's expect this morning from the Lord. और आइए हम परमेश्वर से आशा रखते हैं आज की सुबह के लिए। So this morning I have a couple of announcements with me, which are regular announcements. और आज की सुबह मेरे पास कुछ सूचनाएं हैं जो कि हर रविवार को हम करते हैं। So if you are watching us for the first time or the second time, अगर आप पहली या दूसरी बार देख रहे हैं तो I would like to request you please leave your name and number on the comment box. तो मैं आपसे विनती करूंगा कि आप अपना नाम और अपना नंबर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, so that we can contact you and get connected to you. ताकि हम आपसे जुड़ सके। And we would like to send some books which are related to the Bible. और हम आपको कुछ बुक्स भेजेंगे जो बाइबल से रिलेटेड है, It will encourage you and edify you. और वो आपको प्रोत्साहित करेगी और आपको उन्नति करेगी। Thank you so much for coming. और आपका धन्यवाद आने के लिए। Second announcement is the Bible college classes will be as per the schedule. और दूसरी सूचना ये है कि बाइबल कॉलेज की जो क्लासेस है वो स्केड्यूल के अनुसार ही रहेगी। Till the time we are going live, we will be watching online only. और कुछ समय के लिए हम ऑनलाइन ही देखेंगे। And the classes will be happening on Zoom. और जो क्लासेस है वो जूम पे होगी। If any changes there, if any changes needed, we will help you out in this और कुछ भी बदलाव होगा तो हम आपको बताएंगे through WhatsApp group. और व्हाट्सएप के द्वारा। Okay, so if you have any prayer needs, any prayer request, any of the church member or a family member, अगर आपकी कोई भी प्रार्थना की जरूरत है, अगर आपके परिवार में या कुछ भी प्रार्थना की जरूरत है तो please feel free to call on the number which is displayed on the screen. तो आप हमें कॉल कर सकते हैं जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है स्क्रीन पे। And if you have any counseling you needed, please feel free to call. और अगर कोई भी काउंसलिंग की जरूरत है तो भी आप हमें कॉल कर सकते हैं जो नंबर दिया गया है। Okay, so that's all for the announcement. और आज के लिए इतनी ही सूचनाएं हैं। The offering details, as you all know, that it will be displayed on the screen. और भेंट के बारे में जो भी सूचनाएं हैं वो स्क्रीन पे दे दी गई है। Please give your offerings और आप अपनी ऑफरिंग दे सकते हैं as God leads you. जैसे परमेश्वर आपको अगुवाई करता है। And thank you so much for being faithful. और धन्यवाद आपका फेथफुल रहने के लिए। Okay, so please keep some families in the prayer. और आप कुछ परिवारों को प्रार्थना में रख सकते हैं। Pastor Dharmesh and his whole family. पास्टर धर्मेश और उनके पूरे परिवार के लिए। Maurice Messi and his whole family. मॉरिस मसी और उनके पूरे परिवार के लिए। And other family members whom you remember, and the people who who are in need of prayers. और दूसरे परिवार जो चर्च में जिनको आप जानते हैं और जिनको प्रार्थना की जरूरत है, आप उनको भी प्रार्थना में रख सकते हैं। Okay, so that's all for the announcement. Let's have a word of prayer for the offering and the message. तो आज की इतनी ही सूचनाएं हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं संदेश के लिए और वचन के लिए। Thank you so much, Lord, for this wonderful morning. धन्यवाद परमेश्वर इस अद्भुत सुबह के लिए, This beautiful day that you have given us. बहुत ही खूबसूरत दिन जो आपने हमें दिया है। Help us, Lord, so that we can utilize this day to glorify you. और परमेश्वर मदद करना कि हम इस दिन का सदुपयोग कर सके और आपकी महिमा कर सके। To seek you during the day. हम आपको देख सके, ढूंढ सके, To इस listen दिन to में you. आपसे सुन सके। Thank you so much, Lord. The message which is going to come, bless it. धन्यवाद परमेश्वर, जो संदेश आ रहा है आप आशीषित करना। And also pray for the offering, Lord, the people who are giving or the people who cannot give it. और परमेश्वर जो लोग भेंट दे रहे हैं या जो नहीं दे रहे हैं, And we ask you, Lord, bless everyone, Lord. परमेश्वर आप सभी को आशीषित करना। You are not a God who operates in partiality. आप वो परमेश्वर नहीं है जो पक्षपात में काम करता You give है, us unconditionally, Lord. और आप बिना शर्त का प्रेम देते And हो। the people, Lord, in this time, especially pray for Maurice Messi and his family and Pastor Dharmesh and his family. परमेश्वर इस समय जो लोग पास्टर धर्मेश के परिवार, मॉरिस मसीह के परिवार के लिए, Just comfort them, परमेश्वर आप उन्हें सांत्वना देना, heal them, चंगाई देना। and ask you, Lord, to bring them back. परमेश्वर आप उन्हें वापस लेके आना। Thank you so much, Lord.
धन्यवाद परमेश्वर, Speak to us. हमसे बातें करना। Thank you. In Jesus' most precious name we pray. यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, Amen. आमीन। सबको गुड मॉर्निंग। Good morning, everyone. आप सभी को जय मसीह। Praise the Lord, everyone. आप सभी का स्वागत है इस रविवार की सभा में। You all are welcome to the Sunday morning service. आप सभी का धन्यवाद जो हमारे साथ इस मीटिंग में, इस प्रार्थना सभा में जुड़े हैं। We thank you all that you've joined to this meeting. हम सबको पता है कि अभी ये माहौल थोड़ा लॉकडाउन का चल रहा है, तो इस वजह से फिर से हम जूम मीटिंग में खाना सर्विस ऑन कर रहे हैं। As you all know that this lockdown has come again, so we are doing the service on Zoom. सब इस वचन को पढ़ने से पहले हम प्रार्थना करते हैं। So before we read the word, we'll pray. प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं इस समय लॉर्ड। Lord Jesus, we thank you for this time, Lord. आपको महिमा देते हैं प्रभु, We glorify you, Lord, क्योंकि आप महिमा और आदर की योग्य हैं प्रभु। because you are worthy of our glory, Lord. और इस सुबह में परमेश्वर हम आपसे मांगते हैं प्रभु कि हमें आपके वचनों से बुद्धिमत्ता दीजिए, आपके पवित्र आत्मा के द्वारा बुद्धिमत्ता दीजिए। And this morning we ask that you give us wisdom, Lord. प्रार्थना करते हैं परमेश्वर की हर एक व्यक्ति, हर एक परिवार जो हमारे साथ इस जूम मीटिंग के द्वारा इस संगति में जुड़े हैं, परमेश्वर आशीषित कीजिए प्रभु। Lord, you bless the ones who have joined each and every family in this Zoom, Lord. आपके उस सामर्थ के द्वारा प्रभु आप टच भी करिए प्रभु हर एक व्यक्ति को। You touch each and every person, Lord. प्रभु आप बातें भी कीजिए। Lord, talk to them. आपकी महिमा होने पाए सारी चीजों के द्वारा। That you might be glorified to all things. यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। In Jesus' name we ask this prayer. आमीन। Amen. फिलिपियों का अध्याय 3 हमारे साथ खोल सकते हैं आप। You can open to Philippians 3. और वचन नंबर 7 से verse 7. तो यहाँ पे इस तरह से लिखा है कि परंतु जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया। इससे भी बढ़कर मैंने अपने प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान की श्रेष्ठता के कारण सब बातों को तुच्छ समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई है और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त कर सकूं। Verse 7 onwards. But what things were gain to me, these I have counted loss for Christ. But indeed I also counted all things loss for the excellence of the knowledge of Christ Jesus, my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and counted them as rubbish, that I may gain Christ. और वचन नंबर 9 में, And verse 9. और मैं मसीह में पाया जाऊं, यह अपनी उस धार्मिकता से नहीं जो व्यवस्था से उत्पन्न होती है, परंतु उस धार्मिकता से जो मसीह पर विश्वास करने से मिलती है, अर्थात उस धार्मिकता से जो केवल विश्वास के आधार पर परमेश्वर से प्राप्त होती है। And be found in him, not having my own righteousness, which is from the law, but that which is through faith in Christ, the righteousness which is from God by faith. पौलुस का लाइफ यहाँ पे कुछ चीजें बता रहा है। Paul is saying some things from his life. और हमको ही पता है कि पौलुस अपने जीवन के उन सारे चीजों को क्या बोलता है कि मैं उनको कूड़ा समझता हूँ। And Paul is saying about his life that I count them as rubbish. और वो मेरे लिए हानि की नहीं, मेरे लिए लाभदायक नहीं बल्कि हानि की है। And he is saying that it's not for me to gain, but it is harmful for me. और हम उसके पहले भी जब पढ़ते हैं तो पौलुस अपनी पुराने जीवन के उन हिस्सों को बता रहा है जो उसका एक स्टैंडर्ड लाइफ था। And before also he is talking about his standard life. और वो बोलता भी है कि मैं जब उसके पीछे पढ़ते हैं कि बोलता है कि वचन नंबर 5 में बोलता है कि 8वें दिन मेरा खतना हुआ। And verse 5 says that I was circumcised on the 8th day.
और इजरायली जाति में बिन्यामीन के गोत्र से हूँ, and I am from the tribe of Benjamin. इब्रानियों का इब्रानी हूँ, I am the Hebrews of Hebrew. और बोलता है कि व्यवस्था पालन की दृष्टि में फरीसी हूँ, And according to the law, I am a Pharisee. और आगे भी बोलता है कि मतलब ये सारे चीजों को बता रहा है कि मैं ये सब चीजें मेरा लाइफ था, एक मेरा स्टैंडर्ड लाइफ था, And he is talking about his standard life which he had in past. और वो चीजों को बता रहा है कि मैं मसीह को सताने वाला भी था, And he is saying that he was a troubler of Christ. और बिलीवर को भी सताने वाला था, And he used to give trouble to the Christians also. है ना। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि उसके पिछले जीवन का वो हिस्सा दिखाया देखते हैं। And here we see his past life. लेकिन अभी जब मसीह को प्राप्त कर चुका तो क्या बोलता है कि मैं अपने उन सारे जीवन के उन सारे चीजों को कचरा के रूप में, कूड़ा के रूप में समझता हूँ। But now when he has already received Christ, he is counting those things as rubbish. लेकिन मुख्य जो हिस्सा में जब आता है पौलुस जो वचन नंबर 9 में, And the main part which he comes in verse 8, verse 9. तो सवाल ये उठता है कि पौलुस ऐसा है, पौलुस के जीवन लाइक क्या ऐसा चीज है जिस वजह से वो मसीह के उस वैल्यू को समझता है। And here a question comes that how is Paul able to understand the value? और ऐसा क्या चीज है कि वो अपने पिछले उन हिस्सों को कूड़ा समझता है। And what is the part where he is counting his past as rubbish? उसका स्टैंडर्ड लाइफ को भी नथिंग ना के जैसा समझता है। He is counting his standard life as rubbish. और वो ये है कि वो उस बात की बात कर रहा है जो कि विश्वास के द्वारा जो परमेश्वर से धार्मिकता प्राप्त होती है। And he is talking about faith, righteousness which is found by faith. ये जो धार्मिकता है, जो परमेश्वर ने हमें धार्मिकता दी है, and the righteousness which we received from God, तो धार्मिकता जब उसने हमें दी है तो ये परमेश्वर की ओर से एक स्टैंडर्ड हिस्सा है जो कि परमेश्वर स्वयं धर्मी है। and the righteousness which we received is itself a standard life which God has given us. परमेश्वर को धर्मी माना जाता है, मतलब परमेश्वर को धर्मी माना जाता है, धर्मी कहा जाता है क्योंकि वो अपनी वाचा के प्रति विश्वास योग्य है। And God is called a righteous God because he is truthful towards his promise. तो यहाँ पे जो परमेश्वर है ना धर्मी है, तो यहाँ पे धर्मी और जो धार्मिकता है, कई बार हम सोचते हैं कि ये कुछ ऐसा हिस्सा है जो हम मतलब देखने जैसा। And righteous and just, these two things are which we have to talk about. है ना, तो ये एक इस प्रकार का शब्द है कि मनुष्य का जो जीवन है परमेश्वर के साथ राइट हो जाना। And these words means that the human life should be right with God. है ना, क्योंकि हमारा जो लाइफ क्या था विश्वास से पहले हमारे पास राइचियसनेस नहीं थी, धार्मिकता नहीं थी। And before believing in Jesus, we didn't have that righteousness. हमारा परमेश्वर के साथ जो रिलेशन था वो रिलेशन राइट नहीं था। And the relation which we had with God was not right. और जैसे पौलुस भी अपने उन चीजों को बता रहा है यहाँ पे। And Paul is also talking about the same things here. हमारे भी लाइफ में ऐसे बहुत सारे हिस्से थे जो हमें परमेश्वर के साथ राइट होने से दूर रख रहा था। And there were many things in our life that were keeping us away to be right with God. लेकिन जब हम परमेश्वर के सामने खड़े होते हैं, but when we stand before God, परमेश्वर का जो स्टैंडर्ड के योग्य कोई भी व्यक्ति नहीं है। And no one is valuable or no one is able to stand against or with righteousness. है ना, कि उसके स्टैंडर्ड के सामने कोई भी खड़ा नहीं हो सकता। No one is able to stand in front of his standard. यही जो हिस्सा है कि जो धर्मी है परमेश्वर, वो परमेश्वर का एक स्टैंडर्ड हिस्सा है। And this is the part which is of God, who is itself a righteous God. और यही पे इंसान फेल हो जाता है कि अपने खुद की धार्मिकता के द्वारा वो परमेश्वर के पास नहीं आ सकता। And here where man fails, where he can't go in front of God with his self-righteousness. वो परमेश्वर के साथ सही राइट नहीं हो सकता।
he wouldn't be able to become right with God. है ना। भजन संहिता अध्याय 31 और वचन नंबर 1 में बोलता है कि तू अपने धर्मी होने के कारण मुझे छुड़ा ले। Psalms 31:1 says, "In you, O Lord, I put my trust." है ना। तो वहां पे इस तरह से बोलता है कि मुझे छुड़ा ले। And there it says that, "Lord, you deliver me." छुड़ाने के लिए भी जब लेखक कहता है तो किस वजह से, कि वो परमेश्वर की उस धार्मिकता के बारे में को मुख्य हिस्सा देता है कि अपनी धार्मिकता के अनुसार मुझे छुड़ा ले। And when the writer is talking about his deliverance, he keeps the righteousness as a main focus. तो वहां पे हम क्या देखते हैं कि परमेश्वर के पास एक स्टैंडर्ड है। And here we see that God is having a standard. और लेकिन मनुष्य के पास वो स्टैंडर्ड नहीं है। And human is not having that standard. लेकिन कई बार मनुष्य इस प्रकार से जीता है कि मेरे पास एक स्टैंडर्ड लाइफ है जिस वजह से मैं परमेश्वर के साथ जा सकता हूँ। And many times people live like as if they are having God's standard and they can live like that. लेकिन इम्पॉसिबल है। But it is impossible. लेकिन जब हम मसीह के सामने आते हैं तो हमारी जो पुराना जीवन हमको समझ में आता है कि मैं किस प्रकार से हूँ। And when we go before God, we understand our old life, how it was. और यही आज भी हमारे लिए भी लागू होता है कि हम जब आते हैं तो अपनी योग्यता के अनुसार नहीं, बल्कि हम मसीह के द्वारा जो दिया गया प्रावधान है उसके द्वारा हम आए हैं। And when we come in front of God, we are not able to go in front of God according to our ability, but with God's ability. यहाँ पे देखते हैं कि पौलुस अपने जीवन में बहुत सारी चीजें हैं उसके लाइफ में, लेकिन कूड़ा समझता है। And there are many things in Paul's life, but he is counting them as rubbish. वचन नंबर 9 में जो बात कर रहा है कि वो इस बात बोलता है कि मैं मसीह में पाया जाऊं। And verse 9 says that I might be found in Jesus. और वो बोलता है कि मैं मसीह में पाया जाऊं कि यह अपनी उस धार्मिकता से नहीं, मतलब कि मैं मसीह में यदि पाया जाता हूं तो मेरी धार्मिकता से नहीं जो व्यवस्था के द्वारा आती है। And he is saying that if I am found in Jesus, not according to my self-righteousness, because it is through law. और वो बोल रहा है कि उस धार्मिकता से जो मसीह पर विश्वास करने से मिलती है। And according to that righteousness which is found by us when we believe in Jesus. और ये हिस्सा पौलुस के लाइफ में एक बहुत ही बड़ा जॉय लेकर आता है। And this part brings a great joy in Paul's life. है ना कि फिलिपियों की पत्री जो देखा जाए तो मुख्य विषय वही है कि आनंद करना परमेश्वर में। And the book of Philippians, it says that rejoice in God. अब पौलुस यहाँ पे खड़ा है कि उस परमेश्वर के स्टैंडर्ड के उस हिस्से पे खड़ा है और इस वजह से उन चीजों को पूरा समझ रहा है क्योंकि परमेश्वर ने उसके लाइफ में वो आनंद दिया है। And he is standing on the word of God and he is counting all those past things as rubbish because God has given him joy. है ना। अभी हमको सबको पता है कि फिलिपियों की बुक है ना कहाँ से लिख रहा है पौलुस, जेल से लिख रहा है। And we all know that from where is Paul writing this book of Philippians? He is writing in jail. और वो जेल में रहते हुए भी उन चीजों में आनंद मना रहा है जो परमेश्वर के द्वारा मिली है उसको। And being imprisoned, he is rejoicing with the joy which he has received from God. और वो यहाँ पे दिखाई देता है कि वचन नंबर 9 3 अध्याय का वचन नंबर 9 में कि वो जो धार्मिकता मसीह पे विश्वास करने के द्वारा मिला है। And his joy we can see in chapter 3 verse 9 that he is rejoicing. है ना कि वह उस धार्मिकता के बारे में जो मिला है उसके द्वारा वो आनंद मना रहा है। And he is rejoicing with that righteousness which he got from God. कई बार विश्वासी जीवन में भी ऐसा ही है कि विश्वासी जीवन में जो पिछले लाइफ में बहुत सारी चीजें हैं उन चीजों को लेकर अगर आता है तो आनंद नहीं मना सकता है। And in every believer's life, if he brings his past, he cannot rejoice. हमें वो सारी चीजों को भी छोड़ना पड़ता है उस आनंद में हिस्सेदार भागीदार होने के लिए।
So we also have to leave all those things that we might also be a participant of that joy. और जब तक हम उन चीजों को नहीं छोड़ते हैं तो हम उसमें आनंद नहीं मना पाते हैं जो परमेश्वर ने हमें दिया है। Until we don't leave, we are not able to rejoice with the joy which God has given us. क्योंकि वो हमेशा रुकावट का कारण बनता है। Because it always makes an obstacle. तो हमारा उसके साथ रिलेशन मजबूत नहीं हो पाता। So then our relation is not strong with him. और हमारा जो संगति है उसके पास मजबूत नहीं हो पाती है। And our relationship with him is not strong. मैं कुछ हिस्सा पढ़ रहा था कि डॉक्टर स्टीवन के बुक का कुछ हिस्सा था, इस तरह से कहते हैं। So I was reading a part from Dr. Stephen's book. उन्होंने कहा कि प्रेम कलवरी और पुनरुत्थान के मेरे संबंध को प्रकट करता है। Love talks about that Calvary and my relationship with God. है ना, जो कलवरी और उसका जो पुनरुत्थान जो है, and Calvary and the resurrection, कि मेरे संबंध को प्रकट करता है। It talks about my relationship. और अगला ये कि विश्वास परमेश्वर के वचन से मेरे संबंध को प्रकट करता है। And faith represents my relationship with God. और पवित्र आत्मा का फल उसके साथ मेरा संबंध को प्रकट करता है। And Holy Spirit represents my relationship with him. कि ये चीजें हम जब उसके पास आते हैं, उस कलवरी के पास आते हैं, तो हम उस कलवरी पे क्या देखते हैं कि वो क्रूस को देखते हैं। And when we come to that Calvary, we see that cross. और सिर्फ जब कलवरी पे आते हैं, सिर्फ क्रूस को ही नहीं देखते, बल्कि हम उस पुनरुत्थान को भी देखते हैं। We just don't see that cross, we also see that resurrection. और जब हम वहां पे इन चीजों को देखते हैं तो हमारे संबंध को हम समझ पाते हैं कि हमारा संबंध कितना महत्वपूर्ण होना चाहिए उस मसीह के साथ। And when we see all those things, we come to know that how strong our relationship has to be with God. और पौलुस वही बता रहा है कि मेरे जीवन में जो पिछली चीजें थी वो मेरे लिए वो रुकावट बन सकता है, और रुकावट बना भी उसके लाइफ में। And he is saying that all those past things can become obstacle, and it became obstacle in his life. और वही चीज बोल रहा है कि मैं उन सारी चीजों को कूड़ा समझता हूँ। And that's why he is saying that I count them as rubbish. है ना, और यहाँ पे कि उस जब हम उस कलवरी के पास आते हैं तो वहां पे क्रूस को देखते हैं और उस पुनरुत्थान को देखते हैं, और उस चीज को लेकर हम उस संबंध में मजबूत होते हैं जो परमेश्वर के साथ है। And when we come to that Calvary, we see that cross and we see that resurrection, and we make our relation with God stronger. है ना, कि हम सबको भी पता है कि हम स्वयं की धार्मिकता के द्वारा हम परमेश्वर के सामने नहीं आ सकते। And we all know that with our self-righteousness, we can't come in front of God. है ना, प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती का अध्याय 5 अध्याय वचन नंबर 20 में उन्होंने कहा, Matthew 5:25 says, वहां पे इस तरह से लिखा है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम परमेश्वर के राज्य में कभी प्रवेश नहीं कर पाओगे। Matthew 5:25. वचन नंबर 20। Matthew 5 verse 20. For I say to you that unless your righteousness exceeds the righteousness of the scribes and Pharisees, you will by no means enter the kingdom of heaven. है ना, तो ये प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पे भी एक स्टैंडर्ड रख रहे हैं। And here also God has kept a standard. उस स्टैंडर्ड में उदाहरण दे रहे हैं, शास्त्री और फरीसियों की धार्मिकता का स्टैंडर्ड बता रहे हैं। And he is keeping the standard of an example of scribes and Pharisees. लेकिन शास्त्री फरीसी भी ईश्वर के राज्य में उस स्टैंडर्ड को लेकर नहीं पहुंच सकते। But scribes and Pharisees, when they are taking the standards, they can't enter in heaven. है ना, इसको तुलनात्मक धार्मिकता भी कहा जाता है। And it is also known as the comparative righteousness. और हम देखते हैं कि परमेश्वर के पास हम आते हैं तो उस तुलनात्मक धार्मिकता के द्वारा हम नहीं आ सकते, ना ही स्वयं की धार्मिकता के द्वारा आ सकते हैं।
And when we come before God, we are not able to come with that comparative righteousness nor with our self-righteousness. है ना। तो लेकिन हमारे जीवन में सब कुछ क्रूस के द्वारा जाना चाहिए। And from our life, everything should go through cross. है ना। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि क्रूस के द्वारा जाना चाहिए। And this is important that everything should go through cross. है ना। डॉक्टर स्टीवन कहते हैं कि यदि मैं क्रूस के द्वारा नहीं जाता हूँ, उस मृत्यु को नहीं, है ना, नहीं वहां पे जाता हूँ, तो पुनरुत्थान का जीवन नहीं पा सकता हूँ मैं। And Dr. Stephen says that if I'm not going through that cross, with that death, I'm not able to go through that resurrected life. क्योंकि क्रूस के बाद ही पुनरुत्थान है। Because resurrection is after crucifixion. तो हमारे लाइफ में बहुत सारे हिस्सों में पुनरुत्थान का जीवन इसलिए नहीं मिल पाता है कि मैं उस हर एक उन हिस्सों में क्रूस नहीं लेकर आता हूँ। And sometimes we are not able to live in that resurrected life because we don't bring cross in those parts. है ना। कई बार ऐसा हो सकता है कि बाहर से मैं वचन सुन सकता हूँ। And many times it can happen that from outwardly I can listen. और उसका आदर भी कर सकता हूँ। And I can honor it. लेकिन मैं उन हिस्सों में मैं क्रूस जो अनक्रूसिफाइड जो रिलेशनशिप नहीं हो सकता मेरे पास। But वहां पे मेरे जीवन में अनक्रूसिफाइड रिलेशन हो सकता है। But in that time I can have that uncrucified relationship. है ना, कि मैं सुन सकता हूँ बाहरी रूप से और उसका आदर भी कर सकता हूँ, लेकिन वहां पे मेरे जीवन में क्रूस का जीवन ना हो। Outwardly I can listen about it, I can honor it, but I am not able to live in that crucified relationship. उन एरियाओं में की हर एक उन हिस्सों को मैं क्रूस के द्वारा नहीं लेके जा रहा हूँ। And all those things and all those areas I am not taking through cross. तो उन चीजों को मैं नहीं समझ पाऊंगा जो गॉड मुझे बताना चाहता है। And I will not be able to understand all those things which God wants to speak to me. है ना। तो कई बार ऐसा भी होता है कि जो वो खुद की जो धार्मिकता होता है उसके द्वारा वचन का आदर भी करने लग जाते हैं। And many times we can honor the words. है ना। जो खुद की धार्मिकता वो कई बार बताता And self-righteousness talks about it. है ना, कि यहाँ पे कि खुद की धार्मिकता के द्वारा जो हिस्सा है कि वचन का आदर भी कर सकते हैं। And self-righteousness somehow can honor God's word. लेकिन वो मुझे क्रूस पे जाने से रोक सकता है और रोकता भी है सेल्फ राइचियसनेस। But it can many times stop me from going towards that cross, and many times it does stop us. लेकिन पौलुस उस चीज को बहुत अच्छे तरीके से समझ गया अपने लाइफ में। But Paul understood it a very nice way in his life. और वो जब समझ गया तो उस चीज को यहाँ पे बातें भी करता है वो। And here he is also talking about those things. और वचन नंबर 10 में हम देखते हैं, बोलता है कि जिससे कि मैं उसको और उसके जी उठने के सामर्थ्य को, Verse 10 says, that I may know him and the power of his resurrection. और आगे बोलता है कि सामर्थ्य को तथा उसके साथ दुख में सहभागी होने के मर्म को जान सकूं, कि उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त कर सकूं। And the fellowship of his suffering, being conformed to his death. है ना। यहाँ पे पहले क्या बोल रहा है कि मैं उसके जी उठने का सामर्थ्य को जानूं और उसके दुखों में भी सहभागी हूं, और फिर उसके बाद बोलता है कि मृत्यु की समानता को प्राप्त कर सकूं। And he is also talking about his resurrection and his fellowship in his suffering and his resurrection. है ना, कि मृत्यु के समानता को प्राप्त करना क्या है कि उस क्रूस पे मरना, क्रूस के जीवन को रिसीव करना। And conformed to his death means to receive that crucified life. तो जीवन के उन सारे हिस्सों को उस क्रूस के द्वारा जाने देना। And to allow those things through our life.
और देन मैं उसके उस पुनरुत्थान के उन हिस्सों को समझ पाता हूँ। And then I can understand his resurrected life. और वही वचन नंबर 11 में बोलता है कि मैं भी मृतकों के पुनरुत्थान को प्राप्त कर सकूं। And verse 11 says, if by any means I may attain to resurrection from the dead. है ना, तो मृतकों का पुनरुत्थान को प्राप्त करना लाइक वही है कि क्रूस से वो सारा चीजें जाने देता है, देन वो पुनरुत्थान के उस चीज को समझ पाता है। And allowing all those things to go through cross, and then we can understand. So कई बार सेल्फ राइचियसनेस जो होती है, And many times the self-righteousness, उस सेल्फ राइचियसनेस में जीने वाला व्यक्ति इस तरह से हो सकता है कि उसका माइंड सेट वचन के प्रति क्रूस के द्वारा नहीं गया हुआ है। and the person living in self-righteousness, his thoughts have not gone through cross. है ना, और क्या बोलता है कि वो उसके बाद बहुत सारा ज्ञान हो सकता है, And he might be filled with wisdom. ज्ञान हो सकता है, लेकिन वो क्रूस के द्वारा नहीं जाने देने की वजह से उसके जीवन में बगावत हो सकती है। He might be wise, but if that wisdom has not gone through cross, he might have rebellions. और कई बार ये जो बगावत है दिखती भी नहीं है, And many times this rebellion is unseen. है ना, बाहरी रूप से दिखता है कि बहुत अच्छा दिख रहा है, And outwardly it seems that it is very beautiful. है ना, वो वचन सुन सकता है, He can think about words. कई बार ऐसा भी लगेगा बहुत आदर के साथ रिसीव भी कर रहा है, And many times it seems that he is receiving with honor. लेकिन वो बगावत दिखाई नहीं देती है पूरी तरीके से। But that rebellion is not completely seen. और इस वजह से क्या होता है कि लोगों के जीवन में वो जो हिस्सा है लोगों की शादियों में भी जाता है, लोगों के रिलेशन में भी जाता है, And that part comes in everyone's relationship and their marriages. क्योंकि वो बिना क्रूस का जो रिलेशनशिप है, Because that relationship is without cross. क्योंकि वो बिना है ना अनक्रूसिफाइड फेलोशिप है। Because that fellowship is uncrucified fellowship. और इस वजह से मैं वो मसीह को उस तरीके से नहीं देख पाता जो जैसे वो मुझे चाहता है कि मैं उस तरीके से देख पाऊं। And that's why I'm not able to see Jesus the way he wants me to see him. और उसके काम को भी मैं नहीं उस तरीके से देख पाता हूं जैसे मैं देखना चाहता हूं। And I'm not able to see his works though the way he wants me to see. है ना, तो परमेश्वर का जो विश्वास योग्यता है वो विश्वास योग्य परमेश्वर है ना। And God is a faithful God. क्योंकि परमेश्वर को धर्मी माना जाता है इसलिए क्योंकि वो अपनी वाचा के प्रति विश्वास योग्य है। And God is known righteous because he is truthful towards his purpose. उसका एक स्टैंडर्ड है। He has a standard. तुम हमें भी उसके स्टैंडर्ड को उसके स्टैंडर्ड के द्वारा हमें जीना है। And we also have to live according to his standard. तो कई विश्वासी परमेश्वर के स्टैंडर्ड को लेकर मतलब परमेश्वर ने तो स्टैंडर्ड दिया है लेकिन उसमें वो जी नहीं पाते हैं। And many times Christians, though received that standard from God, they are not living accordingly. है ना, इस दुनिया में हर एक लोगों के पास एक जीवन का स्टैंडर्ड होता है। And the people in this world have a standard of their living. है ना, ऑफिस में काम करने वालों के ऑफिस है ना कंपनी होती है, उनके पास एक स्टैंडर्ड होता है कि हमारा ये स्टैंडर्ड इसके अनुसार ही हम काम करेंगे। And people working in offices and in companies, they have a standard that we will work only in this. और हमको पता भी है कि रिलीजियस जो होता है रिलीजन वाला भी लाइक उनके पास भी एक स्टैंडर्ड होता है। And the religious people also have a standard. लेकिन क्या वो परमेश्वर तक लेके जा सकता है? But can he bring towards God? क्या वो परमेश्वर के सामने खड़े होने के लिए मदद कर सकता है? Can it help him to stand in front of God? और हाँ, हम इस स्थान पे आके देख पाते हैं कि नहीं हो पाता, इम्पॉसिबल होता है। And coming to this place, we come to a result that it is impossible. लेकिन परमेश्वर जो है वो धर्मी परमेश्वर, मतलब ये इसलिए कि वो अपनी वाचा को पूरा करने में अपनी वाचा के प्रति विश्वास योग्य परमेश्वर। And that God is faithful towards his promise and to fulfill it. और वो वाचा ये थी, उस प्रभु यीशु मसीह ने भी पिता के साथ वाचा बांधी।
And the promise was that he also had a promise with God. है ना, कि जब अनंत में मीटिंग चल रही थी, पिता योजना बना रहे थे, तो और तब पुत्र ने पिता के साथ एक वाचा बांधी। And the planning which was happening in past eternity, that time, that son made a covenant with his father. लाइक इस तरह से पुत्र ने कहा कि पिता, मैं मनुष्य को धर्मी बनाने के लिए, धर्मी ठहराने के लिए मैं वो सारी चीजें पूरी करूंगा। And son said, to make that man righteous, I will do everything. है ना, और उसके प्रति विश्वास योग्य भी रहूंगा। And I will be faithful towards it. है ना, और एक पंक्ति नेहमा का अध्याय 9 Nehemiah 9 और वचन नंबर 7 से पढ़ते हैं वहां पे। from verse 7 onwards. अध्याय 9 वचन नंबर 7, हाँ 7 में, तो यहाँ पे इस तरह से लिखा है कि वचन नंबर 7 में, तू ही यहोवा परमेश्वर है जिसने अब्राहम को चुनकर कसदियों के ऊर नगर में से बाहर निकाला और उसे इब्राहिम नाम दिया। Verse 7 says, you are the Lord God who chose Abram and brought him out of Ur of Chaldeans and gave him the name Abraham. सो है ना, यहाँ पे क्या देखते हैं कि परमेश्वर ने ही उसको वहां से निकाल लाया और परमेश्वर ने ही उसको इब्राहिम नाम भी दिया। And here we see that God himself brought Abraham out of his city, and then he only named him. और हम आगे देखते हैं कि वहां वचन नंबर 8 में इस प्रकार कहता है, और तूने उसके हृदय को अपने प्रति विश्वास योग्य पाया और तूने उससे कनानियों, हित्तियों, एमोरियों, परिज्जियों, यबूसियों और गिरगासियों का देश उसको और उसके वंशजों को देने के लिए वाचा बांधी, और तूने अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण भी किया क्योंकि तू धर्मी है। Verse 8 says, you found his heart faithful before you and made a covenant with him to give the land of the Canaanites, the Hittites, the Amorites, the Perizzites, the Jebusites, and the Girgashites, to give it to his descendants. You have performed your words, for you are a righteous God. है ना, तो यहाँ पे नेहमा में भी पंक्ति क्या बोलती है कि तूने अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण किया। And Nehemiah here says that God has fulfilled his promises. है ना, कि उस वाचा को परमेश्वर ने जो बांधी थी उस चीज को पूरा भी किया, और वो उस बारे वचन बोलता है क्योंकि तू धर्मी है। And the covenant which you had given us, you had completed it, and here it says that you are a righteous God. है ना, कि मसीह इस दुनिया में इसलिए आया कि क्योंकि वो धर्मी है। And Jesus came in this world because he was righteous. और क्योंकि वो विश्वास योग्य भी है। And because he is faithful. और उस विश्वास योग्यता की वजह से उस क्रूस पे गया और हर एक इंसानी जाति के लिए उस क्रूस पे जाने से पहले कोड़े भी मारे गए, उसको लहू भी बहाया और क्रूस पे बलिदान भी हुए। And because he was faithful, he went to that cross, and before crucifixion he was beaten badly and he was bled. और वो क्रूस पे वो बलिदान होकर वो कब्र में दफनाया गया, और तीसरे दिन जी उठे। And he was sacrificed on that cross, and he was kept in a tomb, and the third day he was resurrected. अब तीसरे दिन जी उठना में ही वो पिता की भी विश्वास योग्यता दिखाई देती है। And the resurrection, God the Father is also faithful. है ना, और पवित्र आत्मा की भी विश्वास योग्यता दिखाई देती है। And we see Holy Spirit's faithfulness. कि त्रिएक परमेश्वर जो आपस में प्रतिज्ञा किया, आपस में वाचा बांधी, उन वाचाओं के प्रति विश्वास योग्य हैं, और ये हिस्सा इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि वो स्वयं धर्मी है। उनके पास एक स्टैंडर्ड जो है वो उस स्टैंडर्ड को पूरा फुलफिल करते हैं। And the Trinity God, here we see that they all were faithful towards their covenant. So God ने हमारे पास एक वो स्टैंडर्ड लाइफ दिया है जिसके द्वारा हम परमेश्वर को महिमा कर सकते हैं। And God has given the same standard to us that we also can glorify him. और वो स्टैंडर्ड लाइफ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें मिली है। And that standard life we received through Jesus.
और वो स्टैंडर्ड लाइफ को लाइक हम क्रूस के द्वारा रिसीव करते हैं, क्रूस के पुनरुत्थान के द्वारा रिसीव करते हैं। And we receive that standard life through cross and through that resurrection. और तब हम उसके प्रेम को भी समझ पाते हैं And then we can understand his love. कि उसका स्टैंडर्ड लाइफ कितना ब्यूटीफुल है। That his standard is so beautiful. हालांकि अगर एक स्टैंडर्ड हिस्सा है तो उसके सामने दूसरा स्टैंडर्ड की जरूरत नहीं है। And if there is a standard life, it is not in need of another standard life. तो उसको उसी स्टैंडर्ड के अनुसार होना है। So he has to be according to his standard. तो परमेश्वर का स्टैंडर्ड जो हमको मिला है, तो हमें अपना स्टैंडर्ड ऐड करने की जरूरत नहीं, ना कि अपने स्टैंडर्ड के द्वारा जीने की जरूरत है। So when we have received God's standard, we don't need to walk according to our own standard or to keep it with us. क्योंकि वो स्टैंडर्ड लाइफ स्वर्गीय है। Because God's standard is a heavenly standard. और उसमें अनुग्रह भी है। And there is grace in it. क्योंकि वो स्टैंडर्ड लाइफ जीने के लिए हमें वो परमेश्वर की अनुग्रह की जरूरत है। Because to live that standard life, we need God's grace. और जब एक विश्वासी उस तरह से जीने लग जाता है तो उसके जीवन में वो आनंद को महसूस करता है, और सिर्फ महसूस ही नहीं, वो आनंद में भी जीता है। And when a believer lives in that standard, he is rejoicing with the joy which he received from God. और आनंद मतलब ये है कि आसपास में हालातें क्या हो रही है, वो हालातें मेरे जीवन को हिलाने नहीं पाती और मैं आनंद मना सकता हूँ। And the joy is leading him to live not according to the situations happening around him. क्योंकि मैं अभी आउटवर्डली रूप से नहीं देख रहा हूँ, बल्कि मैं इनवर्ड रूप से देख रहा हूँ उसके आनंद को। Because I'm not seeing his joy outwardly, but I'm receiving it inwardly. और हम सबको पता है कि आनंद जो होता है इनवर्ड होता है। And we all know that that joy is inward. और हैप्पीनेस जो होता है आउटवर्ड होता है। And happiness is outward. तो इस वजह से मेरा जो आनंद है हालातों के अनुसार नहीं है, हालातों पे डिपेंड नहीं है। And joy is not depending on the situations. और वो आनंद वो जो उसके स्टैंडर्ड पे डिपेंड करता है। And it depends on God's standard. तो पौलुस आगे हम देखते कि वो बोलता है अध्याय 4 में कि प्रभु में आनंदित रहो, मैं तुमसे फिर से कहता हूँ कि आनंदित रहो। And Philippians 4 says that rejoice in the Lord, and again I say rejoice in the Lord. क्योंकि पौलुस जेल में है, लेकिन उस जेल में परमेश्वर के स्टैंडर्ड को महसूस करके वो लाइक एक्सपीरियंस करते हुए जी रहा है, इस वजह से वो आनंद मना रहा है। And Paul is in prison, but he is able to understand God's standard and he is rejoicing. है ना, आनंद लाइक यहाँ पे क्या है कि परिस्थिति के विपरीत है टोटली। And the joy is totally opposite to the situations. है ना, कि वो जेल में है, सही चीजें नहीं मिल रही हो, शायद बहुत सारा चीजें जो उसके लाइक जीवन में लगने वाली जरूरतें भी हो सकती नहीं मिल रहा है, लेकिन वो आनंद कर रहा है। And Paul is in prison, and maybe he will not get all those things which he wanted, and still he is in joy. हो सकता है कि जेल में फिल्टर वाटर नहीं मिल रहा हो, फिर भी वो आनंद कर रहा है। And it might have happened that in that prison he might have not received a filtered water. है ना, हो सकता है उसके जीवन में कि सबसे ऐसा भी हो सकता है कि हाइजीनिक फूड भी नहीं मिल रहा हो, लेकिन फिर भी वो आनंद मना रहा है। And maybe it would have happened that he might not receive hygienic food, but still he is in that joy. है ना, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि उसको मतलब वो उस तरीके से ट्रीट नहीं किया जा रहा, और हम सबको पता है कि कैदी को उसकी इच्छाओं के अनुसार ट्रीट नहीं किया जाता। And we all know that the prisoners are not treated the way they want. है ना, लेकिन वो आनंद मना सकता है क्योंकि परमेश्वर के द्वारा एक स्टैंडर्ड मिला है, और पौलुस वही आनंद मना रहा है। But he can be in that joy because he has received that standard from God. है ना, और वो आनंद कैसा है कि उस आनंद का कोई सीमा नहीं है। And that joy is limitless. और वो हमें हर दिन के लिए भी है। And that joy is for every day. और यही चीज यहाँ पे हम आके उन चीजों को देख सकते हैं कि जो पुराने जीवन के बहुत सारी चीजें हैं, वो तभी मेरे लिए कूड़ा मैं समझ पाऊंगा। And here I can understand that the past things are rubbish for me. क्योंकि वो चीजें मेरे जीवन में आनंद लेकर नहीं आ सकती। Because those things cannot bring joy in my life.
वो चीजें मेरे जीवन में निराशाएं जरूर लेकर आएंगी, that those things can bring unhopefulness in my life. लेकिन मसीह के द्वारा जो मुझे मिला है उसमें मैं आनंद कर सकता हूँ, But with the things I received from God, I can be happy in it. और उन चीजों के द्वारा मैं महिमा कर सकता हूँ, And with those things I can glorify Him. और उन्हीं चीजों के द्वारा मैं हर एक मसीही भाई बहन के साथ वो संबंध को रख सकता हूँ जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। And I can keep the relationship with our brother and sisters which God has given us. है ना, कई बार अनक्रूसिफाइड रिलेशन की वजह से, अनक्रूसिफाइड फेलोशिप की वजह से, है ना, हम एक दूसरों के साथ भी वो सही प्रकार का रिलेशन नहीं रख पाते हैं। And because of uncrucified relationship and uncrucified fellowship, we are not able to keep that relation. लेकिन जब मैं उस क्रूसिफाइड लाइफ को स्वीकारता हूँ और उसमें जीने लग जाता हूँ, तब मैं दूसरों के साथ रिलेशन को भी मेरा रिलेशन भी दूसरों के भी साथ अच्छा हो सकता है। But when I am receiving that crucified life, my relationship with everyone is becoming stronger. है ना, कि पौलुस यहाँ पे आगे कहता भी है कि मैं अपने जीवन में बहुत एक काम करता हूँ कि मैं पिछली बातों को भूल कर आगे की ओर बढ़ते जाता हूँ। And Paul here says that I try to forget my past and go ahead. है ना, कि पिछली बातों को भूल कर वो आगे बढ़ता है। And forgetting our past and going ahead. और यही एक काम है कि मैं पिछले स्टैंडर्ड को छोड़ता हूँ और मैं उस स्टैंडर्ड को रिसीव करता हूँ जो मसीह के द्वारा है। And I leave my old standard and I receive the standard which I received from Jesus. और उस स्टैंडर्ड में आनंद है। And in that standard I have joy. और उस स्टैंडर्ड में मैं उसके प्रेम को समझ पाता हूँ। And in that standard I can understand God's love. और उस स्टैंडर्ड में मेरा जीवन फ्रूटफुल हो सकता है। And in that standard my life can be fruitful. और वो फ्रूटफुल बनाता है अपने स्टैंडर्ड के द्वारा। And it makes us fruitful through that standard. क्योंकि उसका स्टैंडर्ड ये है कि यीशु मसीह ने यूहन्ना का 15 अध्याय में कहा, And John 15 Jesus says कि सच्ची दाखलता मैं हूँ। I am the true vine. है ना, जब सच्ची दाखलता में हम बने होते हैं तो उसका वो स्टैंडर्ड की, है ना, वहां पे दिखाई देता है। And when we abide in that true vine, we can see His standard. है ना, कि दाखलता में वो लाइफ है। And in that vine, we see that we have that life. और वो स्टैंडर्ड है वहां उसका। And we see that standard there. और यीशु मसीह ने आगे पंक्तियों में कहे थे 15 अध्याय के, यदि तुम मुझ में बने रहोगे, And ahead it says that if you abide in me, तुम फल लेकर आओगे। you will bring fruit. और उन्होंने कहा कि तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। And if you go out of me, you will not receive anything. हम उसमें बने, उसके स्टैंडर्ड में बने रहने के द्वारा ही वो चीजें कर सकते हैं। And abiding in His standard only, we can do those things. और उसका स्टैंडर्ड बहुत ही खूबसूरत है। And His standard is very beautiful. क्योंकि वो स्वर्गीय है। Because He is heavenly. आमीन। Amen. आइए प्रार्थना करते हैं। Let's pray. पवित्र परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु इस दिन के लिए, इस समय के लिए। लॉर्ड, Holy Father, we thank you for this time. इन वचनों के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। Thank you for these words, Lord. कि आपने हमें एक स्टैंडर्ड लाइफ दिया है प्रभु, जो स्वर्गीय है प्रभु। That you have given a standard life which is heavenly. जो क्रूस के द्वारा आती है। Which comes through cross. धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। We thank you, Lord. लॉर्ड, हम मांगते हैं कि हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हैं परमेश्वर, सबको आशीषित करना प्रभु। And we ask everyone who has joined that you bless them. हर एक फैमिली जो हमारे चर्च का फैमिली प्रभु, हर एक को हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। प्रोटेक्शन देना प्रभु इस समय प्रभु। And each and every family, Lord, you give them protection. प्रभु आनंद मनाने के लिए हेल्प करना परमेश्वर। And help them to rejoice in you. हो सकता है लॉर्ड कठिन परिस्थितियां होंगी, हो सकता है कि अलग अलग
हिस्से हो सकते हैं, लेकिन आपके वचनों के द्वारा प्रभु आनंद देना प्रभु ने। Maybe there are hard situations, and Lord, you give them joy through your words. प्रभु आपकी महिमा के लिए प्रभु इस्तेमाल करना हर एक व्यक्ति को प्रभु। Use them for your glory. प्रभु हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर की हमारे चर्च में हर एक लोगों के जीवन को प्रभु आप अपने वचनों के द्वारा प्रभु मजबूत करना प्रभु। Lord, help each and every life that they might strengthen you. प्रभु हम प्रार्थना करते खासकर प्रभु पास्टर धर्मेश का फैमिली प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। We especially surrender Pastor Dhamesh's family in your hand. प्रभु आप उन्हें इंकरेज करना परमेश्वर, वो जॉय देना परमेश्वर उनके हृदय में प्रभु, जिसके द्वारा प्रभु वो उन दुख से बाहर निकल सके परमेश्वर। You encourage him and give that joy that he might come out of that sadness. आपके उस पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह सांत्वना देना और आनंद दे देना प्रभु। Comfort him with your Holy Spirit and give him joy. प्रभु उनके हेल्थ को टच करना परमेश्वर, चंगाई देना पूरी तरीके से लॉर्ड। Touch his health and give him complete healing, Lord. धन्यवाद करते प्रभु, मांगते प्रभु की प्रभु और भी जो लोग बीमार है परमेश्वर उनको भी चंगाई देना परमेश्वर। We thank you and we pray for each and every sick person, Lord. Give them healing. प्रभु जी आपकी महिमा करते हैं हम। We glorify you, Lord. यदि आप हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं, आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में पहली बार सुन रहे हैं इस समय, If you've joined us for the first time or if you're listening us for the first time, सो आप इस समय प्रभु यीशु मसीह को आप अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। and this time you can accept Jesus as your Savior. उस मसीह का स्टैंडर्ड लाइफ को आप इसी क्षण में स्वीकार कर सकते हैं। And you can accept that standard of Jesus. और वो ये है कि आप कह सकते हैं कि प्रभु यीशु मैं आपके नाम में विश्वास करता हूँ। And it says that I believe in your name, Lord. प्रभु यीशु आपके नाम में मैं अपने पापों से क्षमा मांगता हूँ। Lord Jesus, I ask forgiveness from my sin. और आपको मैं उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकारता हूँ। And I accept you as my Savior. यदि आपने इस छोटी सी प्रार्थना को किया है, If you've prayed the simple prayer, तो यीशु मसीह आपको गारंटी देते कि आपके सारे पाप क्षमा हो चुके हैं। and Jesus guarantees you that you've been forgiven from all sins. आप स्वर्ग के नागरिक बन गए हैं। You have become a citizen of heaven. धन्यवाद करते हैं प्रभु जी We thank you, Lord, कि आपने हमें प्रभु संभाला है, सुरक्षित रखा है प्रभु, that you have kept us safe. और पूरे हफ्ते में प्रभु मदद करना प्रभु, आपके इन वचनों को मनन करने के लिए और भी वचनों को पढ़ने के लिए, संगति करने के लिए प्रभु। And help us in the whole week that we might meditate your word and be in that fellowship. प्रभु हर एक के घरों में परमेश्वर आप सुरक्षित रखना प्रभु, And keep everyone safe in their house. धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। We thank you, Lord. प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मानते हैं, We आमीन। ask this prayer in Jesus' name. Amen. आइए इस आराधना के गीत के साथ सभा को विश्राम दें। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह की ज्योति हमारे साथ है। हालेलुया। Let's sing this song. मैं जाऊंगा जहां मैं तेरी रोशनी को किए। Yeah.
है।